Hello students, myself Professor Hiral Pausar from Rafael College, Vapi, and I am going to teach you subject Environmental Science. In today's session, we start our new chapter, that is chapter number 3, Ecosystem. First of all, student, what is ecosystem? Ecosystem क्या है? Ecosystem means the interaction between all the living and non-living things make the ecosystem, right? Ecosystem is formed by the interaction between all the living and non-living things. Living means biotic, non-living means abiotic. Biotic means animals, plants, etc. And अबायोटिक मीन्स सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. तो इन सब का जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड दी ecosystem, right? Okay, what is ecosystem? A ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as the weather and landscape work together to form a bubble of life. इकोसिस्टम क्या है? तो वो एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ. ये सब लोग का इंटरेक्शन वो मिला के क्या बनाते हैं? एक लाइफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर अब मेन थिंग क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये दोनों का इंटरेक्शन और उससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड दी इकोसिस्टम, राइट? चलिए तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. Climate controls the development as well as the distribution of plants and animals. The climate itself is affected by the nature of vegetation cover. क्लाइमेट किसको कंट्रोल करता है? तो वो डेवलपमेंट करता है किसका, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है प्लांट और एनिमल्स को, और वो खुद भी अफेक्ट होता है कैसे? तो वेजिटेशन कवर से क्लाइमेट चेंज होता है, राइट? क्लाइमेट आपका वेदर चेंज हो जाता है तो उसका इफेक्ट रहता है. वेजिटेशन कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स विच इन टर्न्स एक्सर्ट सम इफेक्ट ऑन वेजिटेशन. The term ecosystem refers to the biotic community and its abiotic environment together. Ecosystem therefore includes both the living organism, that is biotic community, and the non-living, that is the abiotic environment, which are interrelated and interact upon the each other, that is called the ecosystem, right? The term ecosystem first of all introduced by the Sir Arthur Tansley in the 1935, and ecosystem can be defined as a structural and the functional unit of biosphere or segment of nature consisting of community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging the materials between them, that is called the ecosystem. The first ecosystem word किसने इंट्रोड्यूस किया था टर्म इकोसिस्टम? सर आर्थर टांसले. सर आर्थर टांसले in 1935, and the definition is given as a structural and functional unit of biosphere or segment of nature. Biosphere means the sphere of living things, and the segment of nature consisting of the community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging the materials between them. That means living and non-living things interaction between the living and non-living things, that is called the ecosystem, right?
चलिए, फ्रॉम द अबोव डिस्कशन वी कैन डिफाइन द इकोसिस्टम एज फॉलोज. The complex system in which interaction between the different components of environment occur is referred to as an ecosystem. Different components of environment. The ecosystem के अंदर main component क्या होते हैं? Producer, consumers and decomposer. जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे. The components of the ecosystem, right? These are the three main: producer, consumers and deconsumers. To be more precise, any spatial, that is relating to space or organizational unit which includes the living and non-living constituents which each other and producing an exchange of materials between the two is termed as an ecosystem. Ecosystem क्या है? तो that means organizational unit which include the living and non-living constituents with each other and producing an exchange of material between the two is termed as an ecosystem. Ecosystem में क्या होता है? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? वो एक्सचेंज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग गार्डन में गए, राइट, पार्क में गए, तो पार्क में क्या, वो पार्क का एक इकोसिस्टम होता है. वहाँ पे क्या रहता है? तो वहाँ पे रहता है प्लांट्स रहते हैं, फिर वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, राइट, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. तो वो सब मिला के क्या बनाते हैं? वो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं. प्लांट्स होंगे तो प्लांट कौन खाएगा? वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो लोग वो प्लांट खाएंगे, राइट. वो मर जाएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी और वापस से डिकम्पोज होके फिर क्या हो जाएगा? प्लांट का प्रोड्यूस होगा, राइट. तो ये इस तरह से आपका इकोसिस्टम होता है, राइट, जिसके अंदर क्या होते हैं? अ प्रोड्यूसर, दैट इज द प्लांट किसको खाना देते हैं? कंज्यूमर्स को, दैट इज द एनिमल्स. फिर वो डेड हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज होता है. और डिकम्पोज हो जाने के बाद वापस से वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वो वापस से प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फूड वापस से प्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम बनता है, राइट. ओके, चलिए. In other words, an ecosystem is relatively self-contained and distinct community of organisms, that is the plants and animals and their environment. In an ecosystem, energy and matter are continuously exchanged between its living and non-living components. Energy exchange करते हैं living and non-living components, right. एनर्जी रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स रिलीज़ करता है एनर्जी जिसको लेते हैं कंज्यूमर रिलीज़ करते हैं जिसको लेते हैं डिकम्पोजर, और उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स लेता है, टेक करता है, राइट, इनटेक करता है. द living needing only the input of sunlight energy to the functions. Examples of ecosystem. The figure in 3.1 describes the concept of an ecocept. तो ये फिगर क्या है? ये फिगर के अंदर है that is plant. This is a plant. प्लांट को कौन खाएगा? कंज्यूमर. और ये दोनों को डिकम्पोजर, राइट. तो दिस इज योर फिगर ऑफ इकोसिस्टम जिसके मेन कंपोनेंट है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इससे हमारा इकोसिस्टम बनता है पूरा, राइट, सर्वाइव होता है. तो प्लांट जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो कंज्यूमर लेंगे, कंज्यूमर एंड प्लांट दोनों जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे वो डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करेंगे जो लेंगे प्लांट्स, और वापस से वो साइकिल चलता रहेगा आपका, राइट. ओके, चलिए. Most of the ecosystem in the world are the natural ecosystem, but some of them are also man-made ecosystem or artificial ecosystem. दो टाइप के इकोसिस्टम आते हैं, जो नेचर होते हैं वो, और जो मैन-मेड होता है. नेचुरल तो क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है? जो डेजर्ट के अंदर होता है, जो एक्वेटिक के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, राइट. जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर है वो सारे नेचुरल है. और मैन-मेड क्या है? जो मैन ने बनाया है, पार्क्स बनाया है, गार्डन्स बनाया है, ये सब मैन-मेड हो गए इकोसिस्टम.
right? So man-made or artificial ecosystem, the examples of artificial ecosystems are crop fields, that is the agricultural land, gardens, parks, vegetable gardens and aquarium, right? That is called the artificial ecosystem. चलिए, the other definitions of ecosystems are given below. Different definitions are given to you. The ecosystem is a community of interdependent organisms together with the environment. आप कोई भी definitions use कर सकते हो. The ecosystem is a community of interdependent organisms together with the environment. तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंट, डिपेंड करते हैं वो एक दूसरे पे, इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सेकेंड वन, द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कम्युनिटी बिसाइड्स इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स always have the functional relationship with the environment. The structural and the functional system of communities and the environment is called the ecological system or ecosystem. And the third one, any unit that includes all the organisms in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clarify defined trophic structure, biotic diversity and material sizes within the system. So these are the definition, and the simple one definition क्या है? Simple one definition is an ecosystem is formed by the interaction between all the living and non-living things, that is called the ecosystem, right? चलिए, then the next one, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. कितने टाइप के इकोसिस्टम आते हैं? तो अभी मैंने बताया 2 टाइप के इकोसिस्टम हैं, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में अगेन 2 टाइप्स. दिस सिस्टम्स ऑपरेट देमसेल्व्स अंडर द नेचुरल कंडीशंस एंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन के ऊपर होगा, जो सॉइल के ऊपर रहेगा, राइट, और एक्वेटिक मीन्स जो पानी के अंदर रहेगा. तो टेरेस्ट्रियल, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा. सॉइल इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. एंड एक्वेटिक, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज द फ्रेश वाटर. इट मे बी लॉटिक मीन्स रनिंग वाटर एज अ स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिवर, जैसे कि रिवर के अंदर रनिंग वाटर. एंड और लेंटिक, दैट इज़ दी स्टैंडिंग वाटर, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, पूल्स वो होंगे वो. तो फ्रेश वाटर के अंदर 2 टाइप के, लॉटिक एंड लेंटिक. लॉटिक मीन्स रनिंग वाटर एंड लेंटिक मीन्स स्टैंडिंग वाटर. एंड सेकेंड वन इज़ अ मराइन. मराइन मीन्स ओशियंस के अंदर. इट कंसिस्ट ऑफ अ डीप बॉडी सच एज ओशियन, सीज एक्सेट्रा, राइट. तो 2 टाइप के इकोसिस्टम है नेचुरल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन के ऊपर होगा, वो जो सॉइल के ऊपर रहेगा वो. एंड एक्वेटिक मीन्स जो पानी के अंदर होंगे वो इकोसिस्टम है. नाउ मैन इंजीनियर इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय man himself through the planned manipulations. For example, man tries to control the biotic community and the फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट. तो ये प्लान, ये मैनमेड में क्या होंगे, तो वो गार्डन्स, पार्क्स, वो जो बनाए होंगे ना, एक्वेरियम बनाते हैं, ये सारे मैनमेड है. एक्वेरियम जैसे जू बनाते हैं, जू, ये सारे मैनमेड इकोसिस्टम है, राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है? Natural ecosystem functions themselves under natural conditions and they are not influenced by the man-made activities. Natural ecosystem naturally functions करते हैं, वो उसके अंदर man-made का कोई activities होती नहीं, influence होता नहीं है. Some characteristics and functions of ecosystems are following. The industrial and automobile generated the air pollutants are trapped by leaves of the trees and convert into harmless compounds. जो इंडस्ट्रीज में से जो एयर पॉल्यूशन होता है, निकलते हैं, वो क्या होते हैं, वो लीव्स ट्रैप करते हैं, ट्रीज ट्रैप करते हैं, और उससे क्या होता है, हार्मलेस कंपाउंड जनरेट होते हैं. द इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर गेट्स फिल्टरेड थ्रू द नेचुरल सॉइल एंड आर थस मेड ड्रिंकेबल. जो वेस्ट, जो सेवेज निकलता है, तो ये लोग वाटर क्या करता है, वाटर, वेस्ट वाटर गेट्स फिल्टर थ्रू दी नेचुरल सॉइल से वो फिल्टर होता है और जिसे हम पी सकते हैं. द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट एंड सॉइल स्ट्रक्चर.
For example, if there is almost no vegetation, the climate will be very dry and desert type, right? अगर जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगा तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ड्राई रहेगा, और वो जो लैंड है वो भी क्या हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे डेजर्ट का इकोसिस्टम होगा. इन द नेचुरल इकोसिस्टम देयर इज कंटिन्यूअस एंड रैपिड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O water, right? The concentration of these compounds varies from season to season and also throughout the year. तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, रैपिड कंटिन्यूअस एंड रैपिड एक्सचेंज होता है किसका, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये क्या होता है, ये सीजन टू सीजन चेंज होता है, ईयर टू ईयर, राइट? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? Such ecosystems are creation of human being. They do so for their conveniences in order to fulfill their certain needs. The kinds of species and the size of the artificial ecosystem may vary widely. The few examples of artificial ecosystem may be as follows: a water filtration tank or pond which purifies the water before supplying it for drinking. वाटर फिल्टरेशन टैंक और पॉन्ड जो वाटर फिल्टरेशन करते हैं, जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं, तो वो वाटर प्योरीफाई करते हैं वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू ड्रिंकिंग, राइट? अ कूलिंग वाटर स्प्रे पॉन्ड इन अ थर्मल पावर स्टेशन. क्लोज्ड इकोसिस्टम क्रिएटेड इन साइंटिफिक बॉटल्स विद द रिसर्च लेबोरेटरीज. रिसर्च के अंदर, बॉटल के अंदर पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं रिसर्च पर्पस के लिए. अ होम एक्वेरियम, हम घर के अंदर मच्छी वो रखते हैं ना, राइट? मछली का घर, राइट? वो. और एन एग्जीबिशन एक्वेरियम सच एज अ तारापुर वाला एक्वेरियम, मराइन ड्राइव, मुंबई, राइट? तो ये जो हम घर के अंदर एक्वेरियम, वो भी एक इकोसिस्टम है. और जो एक्वेरियम होता है बाहर जो मैन मेड बनाया गया है, वो जो जू बनाया गया है, वो सारे क्या है, मैन मेड है. वहाँ पे इकोसिस्टम पूरा मैन ने इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि गार्डन्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, जू बनाया गया है, एक्वेरियम बनाए गए हैं. वहाँ पे मैन मेड इकोसिस्टम हुआ है, जो मैन ने क्रिएट किया है वो इकोसिस्टम, राइट? ओके, तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, सो इन टुडे सेशन what we discuss is the concept of ecosystem and the definition of ecosystem. Simple one, what is ecosystem? Interaction between the living and non-living things in the प्लेस और एरिया, दैट इज़ कॉल्ड दी इकोसिस्टम. एक जगह और एक प्लेस पे, जियोग्राफिकल एरिया, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में एक एरिया के अंदर ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन होता है और वो जो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स का, दैट इज़ कॉल्ड दी इकोसिस्टम. और इसके बाद हमने देखे कितने टाइप्स के इकोसिस्टम है, 2 टाइप के इकोसिस्टम, एंड देन द फंक्शंस ऑफ दिस 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम. ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वन थिंग, दैट इज द component of ecosystem and the energy flow of the ecosystem. Till then, goodbye, stay fit, stay happy, thank you.